Jai Hind everyone and welcome to my channel. Today I'll teach you business studies. We will study second chapter of business studies, that is principles of management. First of all, we should understand what is the meaning of principles. Principles are the statements which reflect the truth about some phenomena with cause and effect relationship. As far as management principles are concerned, they are broad guidelines for the decision making and behavior of managers. Sometimes people confuse management principles with others like pure science principles, but there are many differences. Let's discuss those differences first, then we will proceed further. First of all, as far as management principles are concerned, they are flexible, but the pure science principles are rigid. Point number two, management principles are applied with creativity, but pure science principles are applied as it is in absolute form. Management principles are situational, we can change it, but pure science principles are not situational, they are static. These are the three basic differences between management principles and pure science principles. In the same way, management principles are also different from management techniques. Like management principles are guidelines only for the action, but management techniques are methods and procedures. Point number two is that management principles are more flexible, but management techniques are less flexible. And there is also difference between management principles and values. Management principles are guideline for managerial behavior, but values are just a guidelines for human behavior. Management principles are guideline for managerial behavior, values are guidelines for human behavior. Managerial principles are technical, but values are ethical. So these are the basic differences between principles and pure science, management techniques and values. Before studying nature and significance of management, we will firstly learn about the principles of management. There's a reason behind this. These principles will help you to understand the characteristics and nature of management principles. First of all, we should know about the Henry Fayol. Henry Fayol was born in 1841. He was working in a coal mining company. In 1888, he was promoted to the level of manager. There he applied his techniques and got the title of Father of Management Studies and Thoughts. He gave major contribution in the field of management. He is the one who identified the process of management. The main steps in the process identified by him was planning, organizing, staffing, directing and controlling. And he gave 14 principles of management which can be applied anywhere in any kind of organization. Now we will learn about these principles one by one. First principle is division of work. Henry Fayol was of the opinion that the work of organization should be divided into small tasks or small units. Instead of giving all the work to a particular individual or a person, we should divide that work into parts and we should divide that work in between different individuals, among different individuals. तो हेनरी फ्योल ये कहता था कि जो वर्क है उसको डिवाइड कर लो ताकि वो हर एक एम्प्लॉय पे आ जाए, जितने भी वहाँ पे काम करते हैं उनमें हम बांट देंगे तो उसका एक तो वर्क जो लोड है वो कम हो जाएगा. दूसरी चीज उसने क्राइटेरिया बताया डिवीजन ऑफ वर्क का, दैट वाज क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस. यानी जिस बंदे को जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है और उसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम को बांट लिया जाए.
इससे फायदा क्या होगा कि जो बंदा एक ही काम कर रहा है, बार बार काम करने की वजह से वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, और एक्सपर्ट होने के बाद वो पर्सन ज्यादा एफिशिएंट होगा, जो अल्टीमेटली हमें बिजनेस में हेल्प करेगा। तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं? पहला एस्पेक्ट तो ये है कि ये एफिशिएंसी बढ़ाएगा। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, क्योंकि जब हम काम डिवाइड कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही काम को एक से ज्यादा पर्सन्स कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई किसी काम को कोई भी नहीं कर रहा है, मीन्स डुप्लीकेशन भी नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई काम नहीं हो रहा। तीसरी चीज, स्पेशलाइजेशन का हमें बेनिफिट मिलेगा। एक पर्सन को जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, वो टास्क करेगा, तो उससे हमें स्पेशलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे। और अगर हम इसे फॉलो नहीं करते, इस प्रिंसिपल को, डिवीजन ऑफ वर्क को, उसको वायोलेट करते हैं, तो उस केस में हमें कौन से कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। पहली चीज तो यही है कि हमें कोई भी स्पेशलाइजेशन का फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज, एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। हेनरी फ्यूल तो इस ओपिनियन के थे कि जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो सिर्फ फैक्ट्री वर्क में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये जो है ऑफिस वर्क है, जो टेक्निकल वर्क है, जो मैनेजमेंट का वर्क है, या फिर स्किल जॉब्स हैं, सब में डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम जो है इसके गेन्स ले सकें। And the second principle given by him was authority and responsibility. First of all, we should understand the meaning of authority. Authority means power to take the action, and responsibility means obligation to complete the job at a given time only. So this is the meaning of authority and responsibility. Henry Fayol was of the opinion that we should balance between authority and responsibility, because excess of authority without responsibility bring negative result. The same way, excess of responsibility without authority will not complete the work on time. तो हेनरी फ्योल ने क्या कहा था कि अगर हम अथॉरिटी दे देंगे और उनसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो ये इसमें हाई चांसेस होते हैं कि वो पर्सन अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है। और दूसरे केस में अगर हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दें, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको कंप्लीट करने के लिए हमने उसे पावर ही नहीं दी, हमने उसे अथॉरिटी ही नहीं दी तो उस केस में अगर वो बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो हम उसे लाइबल नहीं कर सकते। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक पर्सन काम कर रहा था, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में था। हमने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुमने 100 यूनिट्स जो है वो बनाने हैं, लेकिन हमने उसे ये अथॉरिटी नहीं दी कि तुम रॉ मटेरियल जो है वो भी परचेज कर सकते हो। हुआ क्या कि रॉ मटेरियल स्टोर में खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इस केस में हम उस पर्सन को जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100 यूनिट्स बनाने थे, उसे लाइबल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड अथॉरिटी थी वो हमने प्रोवाइड नहीं की। इसलिए फेयोल कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि जो पावर है उसका मिसयूज नहीं होगा। और वो कहते थे मैनेजर शुड हैव राइट टू पुनिश द सबऑर्डिनेट इफ ही इज नॉट fulfilling the job willingly, if he is willingly not fulfilling the job assigned to him, or he is just avoiding the obligation, legitimate orders of the senior. In that case, he should have the authority to punish the subordinate, but after listening to the explanation. तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि जो काम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ना तो वो अपनी पावर का मिसयूज कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइम पे कंप्लीट होगी। अगर हम इस प्रिंसिपल को वायोलेट करते हैं उस केस में एक तो वर्क में डिले हो जाएगा, और दूसरी चीज ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी जो है उसका रिजल्ट यही निकलेगा कि टास्क कंप्लीशन नहीं हो। द थर्ड वन इज डिसिप्लिन।
Discipline refers to code of conduct, rules and regulations, employment agreement, clear and fair agreement among subordinate and senior, judiciary application of penalties. So this is discipline only. It requires at all level and it is applicable on all the personnel working in an organization. For example, जैसे एम्प्लॉयज होते हैं उनकी कमिटमेंट है कि वो एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ काम करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेम वे से जो एम्प्लॉयर है उस पे भी डिसिप्लिन जो है वो अप्लाई होगा कि जो एम्प्लॉयर है वो अपनी कमिटमेंट जो उसने एम्प्लॉयज के साथ की है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करे। फॉर एग्जांपल, जो भी सैलरी को लेके उसकी कमिटमेंट है, जो भी इंक्रीमेंट को लेके उसकी जो है कमिटमेंट है, जो प्रमोशन को लेके उसकी कमिटमेंट है और जो वेज रिवीजन है उसको लेके उसकी कमिटमेंट है। तो ये जो चीजें हैं ये कंप्लीट करना डिसिप्लिन का पार्ट है, यानी ये हर लेवल पे जरूरी है और ये दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एम्प्लॉय की भी और एम्प्लॉयर की भी। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा कि सिस्टमैटिक वर्किंग होगी और उसका दूसरा फायदा हमें क्या होगा, जब भी सिस्टमैटिक वर्किंग होती है तो वेस्टेज कम होगी जिससे हमें ज्यादा गेन होगा। अगर हम वायलेट करेंगे तो इनएफिशिएंसी आ जाएगी और इनएफिशिएंसी के साथ साथ कंफ्यूजन होगा, डिले होगा, क्योस होगा। फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि वन एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देने वाला एक ही बॉस हो। अगर एक से ज्यादा लोग ऑर्डर देंगे तो उस केस में एम्प्लॉय जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके ऑर्डर को पहले फॉलो करे या किसके ऑर्डर को फॉलो करे, किसके ऑर्डर को फॉलो ना करे। इन दैट केस कंफ्यूजन की वजह से ना तो वो अपना 100% दे पाएगा और ना ही हमें वो बेनिफिट मिल पाएंगे जो एक बॉस की कंडीशन में हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर ने उसे कहा है कि काम को स्लो करो क्योंकि हमने क्वालिटी को मेंटेन करना है, कि क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, टाइम जितना मर्जी लग जाए। दूसरी तरफ सेल्स मैनेजर जो है वो कह रहा है सेम प्रोडक्शन वाले बंदे को कि काम स्पीड से करो ताकि हम अपने ऑर्डर को जो है पूरा कर पाए, जो डिमांड मार्केट में हो रही है उसे फुलफिल कर पाए। तो उस केस में कंफ्यूजन होगा। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो पर्सन काम कर रहा है उसे ये नहीं पता चलेगा कि वो किसके ऑर्डर को फॉलो करे। कंफ्यूजन की वजह से और ज्यादा डिले हो जाएगा। और अगर वो दोनों में से किसी एक के ऑर्डर को फॉलो कर लेता है, दूसरे के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, क्योंकि दोनों का स्टेटस सेम है, दोनों मैनेजर्स का, तो आपस में ईगो क्लैश होगा। ईगो क्लैश होने की वजह से कंफ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या आता है कि अगर हम एक ही ऑर्डर देगा बॉस जो अपने सबऑर्डिनेट को, उसका पहला फायदा तो ये होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन नहीं होगी तो एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और उसके अलावा जो ईगो क्लैश है वो नहीं होगा। यह है पॉजिटिव एस्पेक्ट। उसके अलावा अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करेंगे तो उसका नुकसान क्या है, इनएफिशिएंसी आएगी, ईगो क्लैश आएंगे और उसके अलावा जो है लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से हमारी सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होगी और हमारे रिसोर्सेज जो है वो भी वेस्ट होंगे। फिफ्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा यूनिट भी हो सकते हैं और कई बार सिर्फ एक यूनिट होता है। तो हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि वन यूनिट वन प्लान पे काम करना चाहिए। हर एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए। मान लो एक कंपनी है जो मल्टी प्रोडक्ट बनाती है, वो सोप भी बनाती है, वो ऑयल में बनाती है। तो ऑयल वाला जो प्रोडक्ट है उसके लिए अलग इन्वायरमेंट की जरूरत है, सोप वाले के लिए अलग जरूरत है। दोनों को अलग अलग चीजें इफेक्ट करती हैं। तो सोप की वर्किंग जो है वो शैम्पू की वर्किंग से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। एक यूनिट जो है वो दूसरे यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उसकी वर्किंग अपने स्टाइल से हो और वो एक दूसरे से ज्यादा इफेक्ट ना हो। यानी उनको अपना गोल क्लियर भी हो कि उन्होंने करना क्या है और वो गोल को अचीव करने के लिए ही हर एक डायरेक्शन जो है उन्हें दी जाए ताकि ऑन द टाइम वी कैन अचीव दैट गोल इन अ एफिशिएंट वे। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो है वो इजीली अचीव हो जाएंगे।
दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा, जो एफर्ट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर हम इसे फॉलो नहीं करते, वायोलेट कर देते हैं, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उस केस में कॉपरेशन नहीं होगा, और उस केस में जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। Sixth principle is subordination of individual interest to general interest. As we know that different group of people are working in an organization and they have their own objectives. Employer have their own objective and in the same way employees. तो अगर तो दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब तो कोई इशू नहीं है। इन केस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अलग है और हमारे जो एम्प्लॉय है, हमारा जो मैनेजर है, उसका प्रिंसिपल जो है, उसका जो मोटिव जो है वो अलग है, अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस केस में हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो फ्योल कहता है कि अगर हमारे गोल्स अलग अलग हैं, इंडिविजुअल अलग गोल है और गोल ग्रुप गोल जो है वो अलग है, तो हमें अपने गोल्स को पीछे रखना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है उन्हें अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने गोल्स के लिए काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव नहीं होंगे, और उस केस में नुकसान हमें भी होगा, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं होंगे तो इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉस में चली जाएगी, और लॉस में जाने की वजह से हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाएगी तो हम अपने पर्सनल जो गेन है वो कहां से कर पाएंगे, अपने गोल्स कैसे अचीव कर पाएंगे। तो वो हेनरी फ्योल कहते हैं कि हम क्या करें, अपने गोल पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जो है प्रेफरेंस दें। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है जिसका काम है रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना, तो रॉ मटेरियल परचेज करते समय वो इस बात का ख्याल जरूर रखे कि परचेज करने से पहले वो मार्केट में सर्च करे उसके प्राइस के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में। वो किसी रिलेटिव को, अपने रिलेटिव को ऑर्डर सिर्फ इस वजह से ना दे ताकि उसे कोई जाती फायदा होगा। अगर वो पर्सनल गेन के लिए किसी रिलेटिव को कोई वो ऑर्डर दे देगा और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, तो अल्टीमेटली इसका असर उस पर भी पड़ेगा। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसके कई बेनिफिट्स हैं। इसको फॉलो करने के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट इज दैट कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इजीली अपने जो है गोल्स को अचीव कर लेगी। दूसरी चीज, ऑर्गेनाइजेशन में जो है हार्मनी बनी रहेगी, और हम इसे वायलेट करते हैं तो गोल्स अचीव नहीं होंगी और हार्मनी जो है वो नहीं होगी। सेवंथ प्रिंसिपल इज remuneration of personnel. Personnel must be paid fairly and adequately for the maximum satisfaction. Fair salary should be given to the employees. अब फेयर सैलरी होती क्या है? फेयर सैलरी को हम 3 पॉइंट की हेल्प से समझ सकते हैं कि जो सैलरी है उसको डिसाइड करते समय कंपनी को 3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज, कंपनी की खुद की फाइनेंशियल पोजीशन, कि उसकी पोजीशन कैसे, उस हिसाब से हम सैलरी जो है फिक्स करेंगे। दूसरी चीज, मिनिमम वेज एक्ट जो है गवर्नमेंट का, उसको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट कितना मिनिमम सैलरी का जो है उन्होंने प्रोविजन रखा हुआ है। तीसरी चीज हमने ये देखनी है कि हमारा कॉम्पिटिटर कितनी सैलरी दे रहा है, सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स। तो हम अपने एम्प्लॉयज को मिनिमम फेयर इतनी सैलरी दें कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मिनिमम मेंटेन हो, उसकी वजह से ही वो सेटिस्फाई हो पाएंगे। अगर सैलरी को लेके उनमें सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो अपना 100% नहीं देंगे, और अगर वो अपना 100% नहीं देंगे तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन कंपनी को जो है वो लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम इन्हें फुलफिल करेंगे, अच्छा रेम्यूनरेशन देंगे, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा कि एक तो वो मोटिवेट हो जाएंगे, दूसरी चीज वो डिवोट कर देंगे, कमिट कर देंगे खुद को ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डिवोशन होगा, कमिटमेंट आएगी और पॉजिटिविटी आएगी और मोटिवेशन जो है उनको मिलेगा। अगर आप वायलेट करते हैं तो उस केस में टर्नओवर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने लग जाते हैं। दूसरी चीज, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। नाउ 8th पॉइंट इज centralization and decentralization. Centralization means power in few hands, say top management only.
डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिविजन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्योल क्या कहता है कि जो पावर जो है वो ना तो हमें सेंट्रलाइज करनी चाहिए कुछ हाथों में, और ना ही उसे कंप्लीट डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसे सेंट्रलाइज फॉर्म से चला सकते हो कुछ हद तक, लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग देयर, और उसका साइज बहुत बड़ा है, तो आप सेंट्रलाइज तरीका नहीं अपना सकते। तो उसने कहा कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलो। कॉम्बिनेशन कैसे कि कुछ चीजों में आप सेंट्रलाइजेशन कर लो और कुछ चीजों में डिसेंट्रलाइजेशन कर लो। और इन दो इसको डिसाइड करते समय भी आपने ये ध्यान रखना है कि अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर जो है वो ट्रेन है, वो एफिशिएंट है, तो आप ज्यादा सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो। और अगर ट्रेन है और एफिशिएंट है तो आप ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो, आप बांट सकते हो पावर को। बट अगर आपके एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, इतने ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, उस केस में आप कम डिसेंट्रलाइजेशन करोगे और ज्यादातर पावर्स जो है वो सेंट्रलाइज कर लोगे, अपने हाथों में रखोगे। तो फ्योल तो इसी ओपिनियन के है कि हमें पावर्स जो है वो अलग अलग लेवल पे कुछ हद तक बांट भी देनी चाहिए और कुछ चीजों में हमें सेंट्रलाइजेशन कर लेनी चाहिए, जिससे हमें दोनों का बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा कि हमें दोनों चीजों के बेनिफिट मिलेंगे, हमें सेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट भी मिलेंगे और हमें डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी जो है एटमॉस्फेयर बनेगा। और क्योंकि जब हम पावर को डिवाइड करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि उन्हें पावर मिली है डिसीजन मेकिंग की, उन्हें पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का जो है मौका मिला है। और हम इसे वायलेट करते हैं तो इसका असर क्या होगा कि एक तो जो हमारे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज हैं उनमें ये फीलिंग आ जाएगी कि शायद उनको चांस नहीं मिल रहा, तो उस केस में वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर हम कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन कर दें तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पावर्स जो है वो उसे मिसयूज होने के भी चांसेस होते हैं। और हम कंप्लीटली सेंट्रलाइज कर लेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो डिले हो जाएगी, हमारे एक्शन जो है वो डिले हो जाएंगे। 9th पॉइंट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, एक फ्योल कहता था कि जो भी कम्युनिकेशन है वो एक चेन में होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एक फ्लो में होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे। अगर नीचे से ऊपर जाना है तो एक चेन को फॉलो करे, नीचे वाला पर्सन अपने ऊपर वाले को बताए, वो उससे ऊपर वाले को बताए, यानी हर एक काम जो है वो चेन में चलना चाहिए। अगर इधर से कोई बंदे ने कम्युनिकेट करना है दूसरी तरफ तो वो उसी चेन को फॉलो करे। इसका फायदा क्या है, क्योंकि अगर हम एक चेन को फॉलो करेंगे तो कम्युनिकेशन में गैप नहीं होगा, और कम्युनिकेशन गैप ना होने का हमें बेनिफिट ये मिलता है कि मिस इन्फॉर्मेशन पास नहीं होगी। लेकिन जब हम चेन को फॉलो करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कोई इन्फॉर्मेशन ज्यादा इमरजेंसी में हमें पास करनी होती है, लेकिन अगर हम इसे चेन के थ्रू ही पास करेंगे तो हो सकता है हम डिले कर दें, इन्फॉर्मेशन पास होने में थोड़ी देर हो जाए और हमें उसकी वजह से नुकसान हो जाए। तो हेनरी फ्योल ने इसका सोल्यूशन भी दिया है। हेनरी फ्योल ने इसका सोल्यूशन ये दिया है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि इन केस इमरजेंसी है तो जो अलग अलग अथॉरिटी पे काम करने वाले पर्सन हैं वो आपस में बात कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है विदाउट अ चेन उसको कहते हैं गैंग प्लैंक। तो इससे वो डायरेक्ट इन इमरजेंसी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है कि एक तो इन्फॉर्मेशन जो है वो सिस्टमैटिक फ्लो में चलती है, दूसरी चीज कोई कम्युनिकेशन का गैप नहीं होता। अगर हम इसे वायलेट कर दे तो इसका नुकसान ये होगा कि हम किसी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेन में जो बनाई हुई थी हम किसी को लाइबल नहीं कर पाएंगे कि वो इन्फॉर्मेशन जो आई है वो किसने गलत दी है, क्योंकि अगर वहां पे कोई चेन ही नहीं है तो हम लाइबल किसे करेंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। There is always a place for everything and everything should be on its place.
फ्योल कहता है कि हर एक चीज़ की, हर एक मटेरियल की, हर एक पर्सन की एक फिक्स जगह होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। हमें पता होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक मटेरियल, एक स्पेसिफिक टूल ऑर्गेनाइजेशन में किस जगह पे पड़ा होता है, या फिर एक स्पेसिफिक पर्सन, अगर हमें उससे कोई काम है, हमें उससे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन में किस प्लेस पे पाया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर हर एक चीज़ ऑर्डर में नहीं होगी, एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं होगी, तो पहली चीज़ तो टूल जो है, मटेरियल जो है, उसे हमें ढूंढेंगे इधर उधर, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। दूसरी चीज़, अगर हमें किसी पर्सन से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए और उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह असाइन नहीं है, तो उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होने की वजह से जो हमें लॉस जो है वो अल्टीमेटली होने फिर शुरू हो जाएंगे। तो हर एक चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर एक चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, ये मानना है हेनरी फ्योल का। और हेनरी फ्योल कहते हैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होगा कि जो वर्किंग है वो स्मूथली चलेगी, और दूसरी चीज़ वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगी। अगर हम इसे वायलेट करते हैं तो पहली चीज़ तो यही है कि वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगी। दूसरी चीज़, डिले इन एक्शन के जो है वो हाई चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज इक्विटी। Equity means kind and fair and just treatment to each and every employee working in an organization. अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेम फेयर ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक पियान जो है या एक मैनेजर है दोनों की सेम सैलरी हो, नहीं, इसका मतलब भी कतई नहीं है। फेयर ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, जो मैनेजमेंट अपने रूल्स इन रिगार्डिंग सैलरी जो अपने रूल्स रखती है, रिगार्डिंग सिक लीव्स जो लेते हैं हम, सिक डेज जो लेते हैं, उसके रिगार्डिंग जो रूल्स होते हैं, और उसके अलावा जो हमारे डिसिप्लिनरी रूल्स होते हैं, वो सबके लिए सेम होने चाहिए। उसमें हमें सबको इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, कलर, रिलीजन इक्वल ट्रीटमेंट जो है देना चाहिए। हमें इन चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अगर हम सबको इक्विटी के साथ डील करेंगे तो हमें इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो मोटिवेट होंगे कि उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। बट इन केस हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो उसका नुकसान जो है ऑर्गेनाइजेशन को होना शुरू हो जाएगा। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका यही है कि एक तो एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, दूसरा उनका जो मोराल है वो हाई हो जाएगा, और अगर हम इसे वायोलेट करते हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि टर्नओवर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में होने शुरू हो जाएंगे। जिस भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना शुरू कर देगा। और उसके अलावा जो रिलेशनशिप है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप जो है अनहेल्थी हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। Fuel is of the opinion that there should be no frequent termination or transfers. अगर आप ऐसा करोगे तो इन दैट केस जो है आपके एम्प्लॉयज जो है उनके लिए, उनके जो मन में है जॉब इनसिक्योरिटी आ जाएगी। अदरवाइज जो अगर उनके मन में जॉब इनसिक्योरिटी आ जाती है तो वो अपना 100% कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे, वो अप टू कैपेसिटी जो है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर हम फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन करते रहेंगे उसका बैड इम्पैक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन पे। बैड इम्पैक्ट क्या आएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करती रहेगी। तब भी फ्योल कहता है कि टर्मिनेशन सिर्फ उस केस में करना चाहिए अगर सिचुएशन अनअवॉइडेबल हो जाए, यानी उसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है हमारे पास, तब लास्ट में जाके टर्मिनेशन के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी को टर्मिनेट करते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ये होगा कि उस पर्सन की जगह पे जो आता है उसे ट्रेनिंग देने में कुछ टाइम हमारा वेस्ट होगा, और पुराने वाला वर्कर ट्रेन होता है तो वहाँ पे हमें जो है लॉस होता है। दूसरी चीज़ फ्योल ये भी कहते हैं कि हमें फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब भी हम रोटेट करते रहेंगे जॉब्स को उसका नुकसान ये होगा हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज हो जाएगी। क्योंकि एक पर्सन एक काम में ट्रेंड हो गया था, अब हमने उसे हटा के दूसरे काम में लगा दिया, तो वो इट इज़ अंडरस्टूड कि वो लोग वहाँ जाके भी कुछ टाइम लगेंगे समझने में, कुछ रिसोर्सेज हमारे वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए फ्योल कहता है कि फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए और फ्रीक्वेंट जो है ट्रांसफ़र भी नहीं होना चाहिए। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये आता है कि एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि अगर एक पर्सन एक ही काम बार बार करेगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा।
दूसरी चीज, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे, बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। और अगर हम इसे वायलेट करेंगे तो वेस्टेज होगी। दूसरी चीज क्या होगी, डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगी, डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज, वो ज्यादा मोटिवेट फिर नहीं रहेंगे। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव, that managers should welcome the suggestions and ideas of employees before finalizing the plan। तो प्लान बनाने से पहले जितने भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं हम आपके अंडर, मैनेजर को चाहिए कि वो उनसे उनके जो आइडियाज हैं उनके आइडियाज को वेलकम करें, उनके सजेशंस को वेलकम करें और उन पे भी एक जो है वो ध्यान दे। लेकिन अगर एक बार प्लान बन गया देन इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। उसके बाद कोई आइडिया सुना जरूर जा सकता है लेकिन हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, फिर हम प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन प्लान से पहले मैनेजर को आइडियाज को वेलकम करना चाहिए। क्यों? इसका बेनिफिट ये होगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनमें फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी, वो फिर हम इजीली अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने खुद ही हमें आइडिया दिया है किसी टारगेट को अचीव करने का, खुद ही हमें एक तरीका बताया है, तो कल को वो ये तो कह नहीं सकते इट इज नॉट अचीवेबल, वी कांट अचीव दिस टारगेट बिकॉज दैट इज ऑलरेडी गिवन बाय देम। तो अगर वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करेंगे तो वो उनको टारगेट अचीव करना ही पड़ेगा और वो इजीली अचीव भी हो जाएंगे। और अगर हम इसे वायलेट करते हैं तो वर्कर को जो है बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं आएगी, वो थोड़ा अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और उसके अलावा उनका जो है डिमोटिवेशन की वजह से हमें जो लॉसेस हैं होने शुरू हो जाएंगे। एंड लास्ट प्रिंसिपल इज स्पिरिट means unity is strength. Managers should encourage team spirit, unity, harmony and bring cooperation among the employees। तो जो मैनेजर का मेन टास्क ये है कि वो ज़्यादा यूनिटी को प्रमोट करे, उनकी एफर्ट्स को इंटीग्रेट करे, उनमें कोऑर्डिनेशन लेके आए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो एम्प्लॉय है वो आई वर्ड को सबसे ज़्यादा अवॉइड करे, उसे आई को अवॉइड करना चाहिए और वी जो वर्ड है उसे यूज करना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज अच्छी हो जाती है, कोई बेनिफिट हो जाता है तो उसे ये नहीं कहना चाहिए दैट दिस इज बिकॉज ऑफ मी, नो ही शुड अवॉइड इट, ही शुड से दिस इज बिकॉज ऑफ अस। तो आई को वी से हम रिप्लेस कर दें तो इसका फायदा क्या होगा? फर्स्ट पॉसिबल एस्पेक्ट ये होगा कि जो पर्सन वहां पे काम कर रहे हैं उनमें फीलिंग डेवलप होगी, टीम स्पिरिट जो है वो डेवलप होगी, जिससे हम इजीली गोल को अचीव कर सकते हैं। इसके हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी है तो मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में 10% जो है वो काम कर रहे हैं, 10% आर वर्किंग ओवर देयर एंड वी हैव डिवाइडेड दैट वर्क अमंग दोज 10 वर्कर्स। दे वर सपोज टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, उन्होंने 100 यूनिट्स बनाने तो हमने 10 जो है डिवाइड कर दिए जो वर्कर काम कर रहे थे उनके लिए। हुआ क्या, हमारे 2 वर्कर जो है वो बीमार हो गए, बाकी ने जो अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया था। अब यूनिटी की वजह से वो क्या करेंगे, जो लोग बीमार हैं उनके टारगेट को भी खुद ही कंप्लीट कर देंगे डिवाइड करके। और अगर यूनिटी नहीं होगी तो वो लोग अपना गोल तो अचीव कर लिया, उन्होंने अपना टारगेट तो कंप्लीट कर दिया, तो वो दूसरे जो रह गए उनका टारगेट कंप्लीट नहीं करेंगे, जिससे हमें ही लॉस होगा। तो अगर हम यूनिटी बना के रखेंगे एम्प्लॉयज के अंदर तो वो इन केस इमरजेंसी अपने काम के साथ साथ दूसरे का काम भी इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे और उसे परफॉर्म भी करेंगे। तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आते हैं। अगर हम इसे यूज नहीं करते, हमारी यूनिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, उस केस में हमें इसका लॉस ये होगा कि एक तो हमारे गोल्स जो है टाइम पे अचीव नहीं होंगे और ज्यादा इंडिविजुअलिज्म होगा। जो हमारे ग्रुप गोल है या हमारी टीम स्पिरिट है, जो यूनिटी है, वो नहीं देखने को मिलेगी। सो दिस इज फॉर द डे। जय हिंद।